Okay, so let's begin. In previous class, we discussed about forms. How can you submit data to form and access that using PHP, right? Everyone is clear about that? Please don't talk. Everyone is clear about that? That how can you process the form? Okay. Now we are going to start learning how to connect to a database, right? So I hope you all are able to see the screen. So when we started this course, we talked about two things. One was front end and another is back end, right? You can also say that it is this is client side and back end is server side, right? And what you are using in the front end, basically HTML, CSS and JavaScript, right? We also learned that HTML is used for giving structure to the page, CSS for the appearance, we are using CSS, and finally JavaScript we are using for the interactivity, right? Now coming to backend, there are two things. What are those two things? One is scripting language and second one is database. So the scripting language that we are using here is PHP in our course. There could be some other programming languages also, and then there is database, which is MySQL. So basically we have a browser and all those things, HTML, CSS and JavaScript, they all work here on the client side. So whatever you are looking at your browser is one of these three things. If you want to request any page, it will request to the server and then server will respond with appropriate code or data, right? So here is the request, here is the response, and on server side we already told that there is PHP and there is MySQL. So whenever you request something, PHP will get some data. If in that case we need to get data from the database and then process that data. It could be any logic, right? And using that logic, it will process the data and send it to the client. For example, CRUD operation, we talked about this. So CRUD is basically creating something, reading something, updating and deleting, and all those things we are doing on database. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, actually मेरे नेटवर्क इशू हो रहा है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? Yes, it's recording. सर मुझे लीव करना पड़ेगा बिकॉज मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है. Okay, no problem. थैंक यू. Right, so there is CRUD operation.
But for performing all these operations, you need to connect to the database first. If you are connected to the database, then you can query database using some scripting language and perform these operations. Right? Everyone is clear about this? Any question till now? Okay. So what we are going to do in our case, we are going to open XAMPP, which provides us all these servers, Apache server and MySQL server, right? In that XAMPP server, you will create a database, and inside that database, you can create multiple tables, table 1, table 2, and so on up to table n, right? To access to this database, you need few things. So first of all is server name, or we can say server IP, right? You can also say that this is host. So we need a host name. Once you have a host, in our case, which is host? Local host, or you can say 127.0.0.1. This is our host. All right. Second thing, once you are on this server or this host, you need two things. One is username and another is password. Using these authentication, you are going to enter to this server. Clear? When you write 127.0.0.1, you can go to phpMyAdmin. We have not set that password, but generally there is a password, right? So username is root by default and password is by default empty, right? So we need to set that. After this we need database name, to which database we are connecting, because in this server you can have multiple databases, right? You can have multiple databases, and inside each database we can have multiple tables. So you have to provide that name also. In this course, let us suppose I am providing full stack web development. This is my database name. When you have all these variables, you need to call a function. Function name is mysqli underscore connect, and then pass all these arguments. So let's number these arguments 1, 2, 3, 4. So you have to pass these arguments in same order, right? And now this function is going to return now this function is going to return a handle. You can say a pointer, right? And using that pointer, you are going to access this database, or you are going to fire some queries, right? So let's start this.
So this is localhost, right? Now you can go to phpMyAdmin. You can create a database here. Let us suppose you are creating database with name full stack web development, or maybe just web, right? Click on create. Now database is created. You can see on the left side. After this, you have to create a table name, whatever table name you want to create. So suppose that we are creating table for users. Excuse me, sir. Yes, please. सर योर स्क्रीन इज लैगिंग. आप तेज बोल रहे हो और बाद में दिख रहा है, तो प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बोलिए. अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा. अभी क्या कौन सी स्क्रीन दिख रही है? डेटाबेस क्रिएट हो गया, ये दिख रहा है. यस सर. Okay, now I am creating a table, right, with name users. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज ऐसे ही बता दिया करो बीच बीच में. तो यूजर्स नाम की टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड इन दिस टेबल वी विल बी प्रोवाइडिंग सम कॉलम्स. सपोज यू वांट टू प्रोवाइड कॉलम फॉर आईडी और यूजर नेम, email id, contact, or maybe city. 4-5 things. So I will make it 5 from here, right? I will select a number from here and click on go. Once you click on go, there is a form kind of thing for you. Here you can fill these things. First is id. Second, I want to provide username. Third, I want to provide maybe email, contact, and the fifth one, city of the user, right? Now we need to give their type. So id is integer, username would be some text, so you can give it varchar or text. But there is a major difference between varchar and text. Whenever you are giving text, and if you maybe provide it a space of 100, and if your username is of 10 character, it's going to take all the characters 100, right? But in case of varchar, you can maybe give it 100, but if username is of 10 or 20 characters, it's going to take 10 or 20 characters. That's why we are going to use varchar more than text. In case of contact, we can use varchar. So every time we are using varchar, right? Now you can provide the length, maybe 10. For email id, maybe 100. For contact, maybe 10 or 12. Or 10 is fine. In case of city name can be longer, so we are giving it 100. There is no default value for these. Have you studied databases? Databases पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है, right? So there is a thing called primary key. In this case, we are going to make id as primary key, and we want to auto increment it. Suppose you are adding some record and id is 1. When you add second record, id should be 2 and 3 and so on. So here is a checkbox here, AI. Click on this. Now key is primary key, right? Everything else is fine. You don't need to do anything else. Okay. So it's primary key automatically. You can see it here. Now click on save, and table is created.
right? So there are multiple ways to add data to the databases. First is you can click on this insert. Now you have options to add. I will add only one row, so I will make it one. You have 4 fields here. So if you don't provide any value in the ID, it will be automatically 1. Username, suppose I am providing my username. Email ID, contact, and then city. If you click on go, one row will be created in the database. So one row is inserted, and this is command for inserting anything to the database, right? Insert into users. This is table name. Then there are column name, ID, username, email, contact, and city, right? And after that we are putting values. So in first one it's null, but that doesn't matter because it's auto incremented. So first ID will be 1, and then name, or you can say username, email after that, third one is contact number, and fourth one is city. Clear? So I will copy this and will save it for. If you want to add something to the database, I am creating a page add.php. I am saving it here. Okay. If you browse it again, you can see there is one record inserted here. So can anyone answer why we are using PHP to insert the record in database when we have this option? We have database, right? We can insert data like this. So why we need PHP or any other scripting language? Can anyone answer? हमारे पास इस तरीके से रिकॉर्ड हम एंटर कर पा रहे हैं, राइट? अभी मैंने करके दिखाया आपको, बट हम फिर भी हमको PHP चाहिए या हमको कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए टू एंटर द डेटाबेस, एंटर द रिकॉर्ड इन डेटाबेस. ऐसा क्यों? ऐसे ही कर लो आराम से जैसे चल रहा है. इसमें क्या गलत है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैनुअली करते रहेंगे. हाँ, बहुत टाइम लगेगा मैनुअली करने में. एक बात तो सचिन ने बोली कि बहुत टाइम लगेगा मैनुअली करने में. ठीक है, अगर डेटाबेस ऐसा करना स्टार्ट कर दें. और कोई? ये एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें एक लॉजिकल गलती है, एक लॉजिकल प्रॉब्लम है इस आंसर में. सर डेटाबेस में रिडंडेंसी हो सकती है. डेटाबेस में रिडंडेंसी हो सकती है. ओके, कैसे हो सकती है रिडंडेंसी? अगर आप आगे से फ्रंट एंड से या किसी स्क्रिप्ट के थ्रू एंटर करेंगे तब नहीं होगी. ये मतलब कैसे बच रहे हैं हम उसमें रिडंडेंसी से? क्या चीज रिडंडेंट होगी? जैसे इस टेबल के केस में क्या चीज रिडंडेंट होने वाली है? एनी अदर आंसर? डेटाबेस कोई भी एक्सेस कर सकता है. ओके, नहीं पहले इनके आंसर को सुन लेते हैं. आपका नाम क्या? ऋतिक का आंसर सुन लेते हैं पहले कि कोई भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है. तो आप डेटाबेस सबको एक्सेस पहले तो करवाना चाह रहे हो या नहीं करवाना चाह रहे हो?
तो आप कह रहे हो कि डेटाबेस, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता वैसे तो, ऐसा कहना चाहते हो क्या? अगर फॉर्म लैंग्वेज के थ्रू करेंगे तो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, हम स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, सब कोई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके आंसर से मिला जुला के जो मैंने निकाला वो ये है कि डेटाबेस, वैसे देखो ना, आप जब फेसबुक पे काम करते हैं, फेसबुक अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं, क्या डेटाबेस दिखता है आपको? नहीं दिखता ना। तो पहला आंसर तो यही कि डेटाबेस सबको नहीं दे सकते हम। डेटाबेस दे देंगे कोई कुछ भी छेड़खानी कर लेगा, है ना। प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे। हाँ, ले ऐसे डेटाबेस ओपन करके दे दिया, लो किसी भी टेबल पे आप जो मर्जी करो। वैसे तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी किसी को पता नहीं होना चाहिए, राइट। आउटसाइड वो जो प्रोग्रामर वाला जो पार्ट होगा उनके अलावा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्या क्या टेबल्स हैं, अगर उनका नाम भी किसी को पता चल गया वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सिक्योरिटी इशू है, राइट। अब यूजर को ऐसे दे देंगे तो है ही प्रॉब्लम। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक्सेस नहीं होता है किसी के पास भी डेटाबेस का। जैसे आप भी अपना वेबसाइट पे बनाते हैं अगर, तो आप किसी को डेटाबेस का एक्सेस थोड़ी देंगे, नहीं देते हैं, राइट। तो आप इसीलिए स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं उस डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो अभी हम जो फ्लो बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं, हमने एक फॉर्म बनाया सबसे पहले फ्रंट एंड पे, राइट। हमने फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में डेटा एंटर कर रहे हैं। वहां से जो फॉर्म है पहले वो तो कैसा है, वो क्लाइंट साइड वाली चीज है, वो HTML CSS है जावास्क्रिप्ट से मिला जुला के बना हुआ है जो फॉर्म बना हुआ है। उसके अंदर जब डेटा एंटर करेंगे तो वहां पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का काम खत्म हो गया, क्योंकि ये ब्राउजर पे ही काम कर सकते हैं। Node.js की बात नहीं कर रहे हैं, अगर Node.js होता तो फिर वो सर्वर पे भी काम कर लेगा। तो इसीलिए जब इन तीनों का काम खत्म हुआ तो वहां से जिम्मेदारी किसने उठाई, PHP ने। हमारे केस में PHP ने जिम्मेदारी उठाई कि मैं इस डेटाबेस को, इस रिकॉर्ड को डेटाबेस में एंटर करूंगा, राइट। तो PHP ने वहां से उठाया उसको, जो हम $_post और गेट से डेटा लेते हैं, आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था। डेटा उठाते हैं और उसके बाद डेटाबेस में एंटर करने का काम PHP तो ऐसे नहीं कर सकता ना। डेटाबेस में तो जो SQL की क्वेरीज है वो काम करेंगी, राइट। तो अब कैसे एंटर करवाया जाए, तो PHP कुछ फंक्शंस को यूज करता है उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इंसर्ट इनटू यूजर्स, उसके बाद वैल्यूज। तो PHP उस क्वेरी को अपने थ्रू काम करवाता है, ठीक है। कुछ फंक्शंस का यूज करता है और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाता है। यानी कि कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं जो क्वेरी लेंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे और आपको बता देंगे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। बट उससे पहले क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो कहीं पे भी आप अगर क्रिएट कर रहे हैं या रीड अपडेट डिलीट कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले आपका काम रहेगा डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो हम सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस का नाम आपको पता है क्या है, वेब नाम का डेटाबेस है, राइट। तो मैं एक फाइल बना देता हूं और इस फाइल का नाम मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल रख देता हूं या config.php रख देता हूं। वो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें हम सारी सेट कर सकते हैं और उसको फिर इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कोड में। जैसे आप सी के कोड में क्या करते हैं, सी के कोड में क्या करते हैं आप, stdio.h इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, सबसे पहला काम हमारा ये है। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम ये PHP का टैग लगाएंगे सबसे पहले। तो उसके बाद मैंने आपको 4 वेरिएबल कौन कौन से बताए थे। सबसे पहला होस्ट नेम है, और होस्ट नेम हमारे केस में क्या है, या तो आप लोकल होस्ट लिख लीजिए या आप लिख लीजिए 127.0.0.1, ठीक है। मान लीजिए आप इस कोड को किसी वेब सर्वर पे डाल रहे हैं या आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हैं,
और जो भी आपने यहाँ पे डेटाबेस बनाया फिर उसको आपने अपलोड कर दिया कहीं पे, यहाँ से एक्सपोर्ट किया उठा के और सी पैनल पे डाल दिया और उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में कोई होस्ट नेम बदलना पड़ेगा आपको और यूजर नेम पासवर्ड उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि डेटाबेस का हो सकता है वहां पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड कुछ और रखा हो, और सिक्योरिटी के लिए रखना भी ज्यादा बड़ा पड़ता है। यहाँ पे तो छोटा सा हमने कुछ किया भी नहीं उसमें। फिर यूजर नेम की बारी आई। यूजर नेम क्या है? रूट, ये डिफॉल्ट है। इसके बाद क्या है? पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड अभी हमने बोला कि ब्लैंक है फिलहाल के लिए। आप चेक कर लीजिए, ऐसा ये वाले जब आप रन करेंगे तो देख लेना कहीं आपके सिस्टम में कोई पासवर्ड पड़ा हुआ तो नहीं पहले से। ज्यादा से ज्यादा अगर पड़ा होगा तो रूट पड़ा होगा, अगर आपने सेट नहीं किया तो, नहीं तो आप सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या काम है? जो भी डेटाबेस का नेम है वो, ठीक है, या डेटाबेस लिख लीजिए या डेटाबेस नेम लिख लीजिए। और डेटाबेस का नाम हमारा क्या अभी रखा था हमने? वेब। तो ये 4 चीजें हो गई। अब हमने कौन से फंक्शन की बात की थी? MySQLi कनेक्ट। ये फंक्शन है और इसमें चारों चीजें पास होंगी। तो चारों चीजें एक एक करके लिख देते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नेम वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, पोस्ट नेम कॉमा यूजर नेम पासवर्ड और फोर्थ वन डेटाबेस का नाम। ये आपको एक हैंडल या आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है या पॉइंटर रिटर्न करता है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो उस पॉइंटर का कुछ नाम रख लेते हैं। तो आप जनरली जहां देखेंगे इसका नाम ऑन नाम रखा रहता है, या आप कुछ और चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वेरिएबल है, सिंपल। अब जब आपके पास ये कुछ रिटर्न आया, उस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं आई या सही तरीके से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये फेल्स हम ज्यादा देख नहीं रहे हैं PHP में, क्योंकि ये सिमिलर है जैसे हमने पहले पढ़ा था C या C++ से। आपने बहुत ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पढ़ ली है, तो मुझे लगता नहीं कि इफ एल्स बताने की जरूरत है, राइट। जो नई चीजें होंगी मैं बताऊंगा। तो अगर कनेक्शन ट्रू है दैट मीन्स कनेक्शन सक्सेसफुल है, अदरवाइज कनेक्शन फेल हो चुका है। तो इसको आप इको करा सकते हैं यहाँ पे, कनेक्शन सक्सेसफुल। ये मैसेज पास कर सकते हैं आप यूजर के लिए, ताकि यूजर को पता रहे। अभी हम अपने लिए कर रहे हैं चेक करने के लिए। इस पेज को ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इन 4 ऑप्शन में से जो हमने पास किए उनमें से अगर एक भी गलत कर दिया तो हमारे डेटाबेस से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए फेल हो गया तो आप ये बोल सकते हैं कनेक्शन फेल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और कनेक्शन जब फेल हो गया आप साथ में एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। वो फंक्शन आपको क्या बताएगा कि कोई एरर तो नहीं है, राइट। तो एक फंक्शन होता है MySQLi कनेक्ट एरर, कनेक्ट एरर। तो इस फंक्शन का काम है आपको ये बताना कि अगर कोई एरर आई है तो वो एरर क्या है, ठीक है बच्चों। इतना सबको समझ में आया क्या हुआ? और ये दूसरा ऐड वाला पेज था हमारे पास, इस ऐड वाले पेज का भी इस्तेमाल करेंगे अभी हम। तो फिलहाल के लिए तो इतना देख लीजिए, इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में मुझे इस पेज का नाम लिखना है, और पेज का नाम क्या है? config.php। तो ये कह रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। इसका मतलब डेटाबेस से हम कनेक्ट हो चुके हैं, डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब आप इंसर्ट डिलीट वगैरह वगैरह जो भी करना चाहे सारा कुछ कर सकते हैं। तो एक बार कुछ गलतियां करके देखते हैं ताकि हम कनेक्ट ना कर पाए। तो पासवर्ड में रूट डाल के देखता हूँ, यूजर नेम भी रूट, पासवर्ड भी रूट। अब देखो क्या होता है, अब एरर आ गई।
एरर क्या है, माय एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस इन, और ये कुछ एरर्स आए। एरर्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो एक्सेस होना चाहिए हमें मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं है। और ऑथेंटिकेशन प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पासवर्ड गलत डाला, राइट। मान लीजिए आपने पासवर्ड सही कर दिया और डेटाबेस का नाम गलत डाल दिया, जैसे web2 कर दीजिए, तो अब उसके बाद डेटाबेस भी नहीं होगा ये वाला। तो अगर होगा तब तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये डेटाबेस नहीं है तब भी एरर आ जाएगी। और देखिए एरर क्या बता रहा है, अननोन डेटाबेस web2, उसको ये डेटाबेस नहीं मिला। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है? चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वेब को मैं वेब कर देता हूँ, लोकल होस्ट की जगह कुछ और लिख लेता हूँ, लोकल होस्ट नेम लिख लेता हूँ। अब उसको वो आईपी ही नहीं मिलेगी जहां उसको जाना है। ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, लेकिन उसको आईपी नहीं मिलेगी जहां पे जाना है। तो इस बार देखते हैं एरर क्या आती है। तो क्या एरर आई, PHP नेटवर्क गेट एड्रेस फेल्ड, टेम्पररी फेलियर इन नेम रिजोल्यूशन। इसका मतलब जिस आईपी, जैसे आपकी गूगल की कोई आईपी एड्रेस है, अगर आप उस आईपी एड्रेस की जगह किसी और आईपी एड्रेस से कोशिश करें गूगल को एक्सेस करने की, तो हो जाएगा क्या? मान लीजिए 5-6 आईपी एड्रेस है या 10 आईपी एड्रेस है सपोज, उन 10 में से कोई एक ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता है तब तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला आईपी एड्रेस या ये नेम उसको मिला ही नहीं कहीं। हमने कहा था कि आप लोकल होस्ट की जगह आईपी एड्रेस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला ट्राई करते हैं, रन करें, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो आप लोकल होस्ट लिख लीजिए या 127.0.0.1 लिख लीजिए, आपका दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई दिक्कत नहीं है? सब सही चल रहा है? ठीक है, तो ये तो हमने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया इतने से। अब हमारा आगे क्या काम रहेगा, अब आगे हमें कनेक्ट करना है डेटाबेस से, सॉरी डेटाबेस से तो कनेक्ट हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, ऐड करना है कुछ। अब ऐड करने के लिए हमने पहले से फॉर्म बना रखे हैं कुछ, ये देखो ये फॉर्म बनाए थे हमने। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे फॉर्म को उठा लेता हूँ यहाँ से, पूरा पुराना वाला जो था यहाँ ऐड में डाल देता हूँ। इस क्वेरी को रहने देते हैं यहाँ पे, ये हमारा फॉर्म है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब इसको ओपन करेंगे आप, एक तो मैं यहाँ पे पहले PHP का टैग डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये PHP के अंदर लिखना है बाद में, और इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इस पेज को खोल के देखें add.php को, तो कॉन्फ़िग वाला काम तो हो गया था। ठीक है, add.php, तो ये फॉर्म ओपन होके आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म की जरूरत नहीं है। फॉर्म हमें कौन सा चाहिए, जिसमें 3-4 चीजें हों। वो 3-4 चीजें कौन कौन सी हैं, यूजर नेम है एक, तो पासवर्ड की जरूरत नहीं है। यूजर नेम की बात क्या था, इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें कुछ भी नहीं थी, राइट। यूजर नेम की बात क्या था बच्चों, ईमेल था। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्ट था, राइट। आईडी एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी जो भी होगी। ऑटो इंक्रीमेंट इसीलिए किया हमने कि आईडी खुद से आ जाए। कॉन्टेक्ट ये खुद से डालना है आपको। इसका टाइप आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और नेम इसको कॉन्टेक्ट कर लीजिए। प्लेस होल्डर टाइप योर कॉन्टेक्ट नंबर, और उसके बाद सेलेक्ट सिटी। आप चाहे तो सिटी एंटर करवा सकते हैं,
या इस तरीके का कोई ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये आ गई 4 चीजें। यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल यहाँ पे एंटर करना है, कॉन्टैक्ट, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी आप एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं, उसमें खुद से एंटर कर लो। लेकिन सिटी या ऐसी चीजों के लिए क्या करना चाहिए, वैसे जो चीजें आपको पता है कि फिक्स है उनके लिए ड्रॉप डाउन बनाना सही है। ऐसा क्यों? नहीं तो मान लीजिए देहरादून किसी ने किसी और तरीके से लिखा, किसी ने और तरीके से लिखा, आपको फिल्टर करना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला टास्क क्या है, हमें फॉर्म से जब डेटा लेंगे तो उससे पहले हमें डेटाबेस से कनेक्ट भी करना पड़ेगा। मतलब अभी जरूरत नहीं वैसे डेटाबेस से कनेक्ट करने की एज सच, क्योंकि अभी आप क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं। अगर आप बैकएंड पे जा रहे हैं तो डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो क्या है कि आप एक कॉन्फ़िगर वाला कोड पूरा उठाओ यहां से, सॉरी, ये कॉन्फ़िगर वाला कोड उठाओ यहां से पूरा और यहाँ ऊपर छाप दो। ठीक है, तो जिस फाइल से आप PHP या डेटाबेस को प्रोसेस कर रहे हैं, जिस फाइल में PHP लिख के, वहां पे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये वाला कोड होना जरूरी है पहले। अगर नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे हम तो देखो ऊपर आ रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ये सोचो जब आप सी का कोड लिखते हो और printf लिखते हो तो stdio.h इंपोर्ट करना पड़ता है ना, आपको इंक्लूड करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे है, आपको बताना पड़ेगा कौन सा कोड है। तो 2 तरीके होते हैं, जब आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं सी कोड में तो stdio.h का जितना भी कोड होता है वो सारा का सारा उस फाइल के अंदर कॉपी कर देता है। ये पता है आप लोगों को? कंपाइलेशन फेजेस पता है आप लोगों को? ठीक है, तो एक तरीका तो ये है जो हमने देखा, लेकिन ये तरीका तो सही नहीं है ना, नहीं तो हर फाइल में लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा एक काम करो, इंक्लूड करो फाइल को, जैसे stdio.h को इंक्लूड करते हैं वैसे ही यहाँ पे इंक्लूड करो। तो इंक्लूड करने में आपने लिखना है फाइल का नाम, वो है config.php। ये बात समझ में आ रही है? config.php में अगर जैसे आप लिखा आपने, इसका मतलब ये है कि इस फाइल को इंक्लूड कर दो। और इफेक्ट देखो, अगर हम इसको रिफ्रेश करें पेज को तो इफेक्ट वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जो था पहले से वही रहेगा। क्लियर है बच्चों ये बात? लेकिन जैसा हमने ये पढ़ा अभी इंक्लूड, इसकी जैसी 2-4 चीजें और हैं। वो क्या है? एक होता है इंक्लूड वंस, config.php। कोई आइडिया है किसी को कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नाम से थोड़ा बहुत पता चल भी रहा होगा आपको, बता सकता है कोई? Include config.php and include once config.php. What is the difference between these two functions? ऐसे गेस करके बताओ तो, कोई मार थोड़ रहा है आप लोगों को। गेस करने के लिए मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा तो गेस कुछ भी कर सकते हो आप, वाइल्ड गेस जो भी होगा। इसके नाम से थोड़ा बता दो। इंक्लूड का मैंने आपको बता दिया, इंक्लूड वंस का आप लोग बता दो। एक ही बार इंक्लूड होगा, राइट? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंक्लूड वंस का मतलब ये config.php को एक ही बार इंक्लूड करेगा। अच्छा, तो ऐसा कब हो सकता है कि 2 बार इंक्लूड हो जाए? कैसे? अब नहीं लिखेंगे हम 2 बार, तो 2 बार कैसे हो जाएगा? जैसे एक फाइल में अगर कोई एक फाइल पे कोड कर रहा है तो कौन इतनी बेवकूफी करेगा कि पहले इंक्लूड config.php ऊपर लिखा उसने और नीचे भी दोबारा लिख दिया? क्यों करेगा कोई ऐसा? एक सही प्रोग्रामर होगा तो ऐसा काम तो नहीं करेगा ना। तो ऐसा कब हो सकता है? जैसे आप ये सोचो कि आप हेडर फाइल जो इंक्लूड करते हो सी के कोड में, कभी ऐसा हो सकता है कि एक फाइल 2 बार इंक्लूड हो जाए किसी तरीके से? दोनों को
नहीं, इनको एक बार नहीं करेंगे, ये दोनों तो अलग अलग बार ही करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इंक्लूड जैसे आपने कर दिया तो उसमें चांसेस हैं कि फाइल 2 बार इंक्लूड हो जाए किसी तरीके से। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि एक फाइल के अंदर 2 बार इंक्लूड हो जाए फाइल, और 2 बार इंक्लूड होने का नुकसान क्या है कि 2 बार कॉपी हो जाएगा कोड, फाइल बड़ी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस और नो? तो मैं कह रहा हूँ इंक्लूड वंस को यूज करो आप, उससे अच्छा। इंक्लूड वंस से क्या होगा, फाइल एक ही बार इंक्लूड होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर ये है कि ऐसा कब होगा कि 2 बार इंक्लूड हो गई? ऐसा कौन करेगा ये काम कि 2 बार इंक्लूड कर दे फाइल को? सर जैसे अभी आप सर इसमें इंक्लूड कर रहे हो सर, ऐसे ही आप किसी और फाइल को मतलब इसमें इंपोर्ट कराओ और उसके अंदर भी इंक्लूड हो, राइट, तो सर 2 बार हो सकता है। बिल्कुल सही। ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने इसमें इंक्लूड लिखा, मैंने किसी दूसरी फाइल में भी इंक्लूड लिखा और उस फाइल को यहां इंक्लूड किया, तो वो फाइल तो इंक्लूड हुई, साथ में उसके साथ ये फाइल भी इंक्लूड हो गई छोटी, जो मैंने एक लाइन लिखी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे देखो, ये कॉन्फिग फाइल है, इसके अंदर मान लीजिए मैं लिखता हूं इंक्लूड, और कोई दूसरी फाइल है जिसका नाम है abc.php, ठीक है। अब मैं ऐड में आया दूसरे वाले में, और यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया add.php। मुझे लगा यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि मुझे थोड़ा ना पता है कि, क्योंकि देखो जब इंडस्ट्री में काम होता है कैसे होता है, मल्टीपल लोग काम करते हैं, राइट। अब किसी को ये थोड़ा ना पता है कि उसने इंक्लूड किया होगा कि नहीं होगा, या उस किसी और ने इंक्लूड किया कि नहीं है, कौन इतना ध्यान रखेगा? मान लीजिए 50 फाइल है इंक्लूड करने के लिए, तो कौन किस बात पे ध्यान देगा? नहीं दे सकता ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कॉन्फिग के अंदर और सॉरी abc.php है, और इसके अंदर भी abc.php है, और इसके अंदर मैंने कॉन्फिग को भी ले लिया। तो अब जब कॉन्फिग को लेके आऊंगा तो वो सारा कोड अपने साथ लेके आएगा, तो abc 2 बार आ गई, तो गड़बड़ हो गई ना। एरर नहीं आने की कोई, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, तरीका गलत है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लूड, पहले तो इसको एबीसी को हटा देते हैं, ये एग्जांपल के लिए था, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जैसे एबीसी के साथ हुआ, वैसे ही किसी और दूसरी फाइल के साथ भी हो सकता है। जैसे कॉन्फिग की बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिग के साथ भी हो सकता है। अगर आपने इंक्लूड वंस लगाया है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इंक्लूड, एक सेकेंड प्लीज वेट करना है, 1 मिनट में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सबको, इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस में क्या डिफरेंस हुआ, राइट?
अच्छा, जैसे इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस होता है ना, वैसी एक और चीज होती है, रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस। रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस, इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है? क्या कोई डिफरेंस बता सकता है इंक्लूड में एंड रिक्वायर में? रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस में तो वही डिफरेंस है जो इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस में, बट क्या कोई रिक्वायर एंड इंक्लूड में डिफरेंस बता सकता है? जब उसकी जरूरत होगी तभी लेगा। ओके, कौन, रिक्वायर या इंक्लूड? रिक्वायर। अच्छा, चाहे जरूरत ना भी हो इंक्लूड में तब भी कर देगा, और रिक्वायर में जब जरूरत होगी तभी लेके आएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? कोई और इसका आंसर करना चाहे? कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव किसी का? सर अगर रिक्वायर में कुछ एरर आ रही हो तो शायद वो चले ही ना, और इंक्लूड में शायद वो तब भी चल जाए। अच्छा ठीक है, गुड। क्या नाम आपका? सर अक्षत। अक्षत, ठीक है। तो अक्षत ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि इंक्लूड में अगर एरर आ रही है तो चल जाए, और रिक्वायर में एरर आए तो बोले नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब एक चीज ट्राई करते हैं क्या होता है। तो रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस वाला कॉन्सेप्ट तो अभी हमने समझ लिया, तो इसको हटा देते हैं। अब रिक्वायर एंड इंक्लूड की बात करते हैं सिर्फ। तो जैसे रिक्वायर लिखा हुआ है मैंने, इसकी जगह पहले मैं इंक्लूड कर देता हूं। तो कॉन्फिग फाइल एग्जिस्ट करती है, राइट? इसको रिफ्रेश करेंगे तो कनेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से कोड पे जाते हैं। कॉन्फिग फाइल का नाम मैं चेंज करके कुछ और रख रहा हूं, जैसे कॉन्फिग 1 रखा मैंने। तो कॉन्फिग 1 रखने से रिफ्रेश किया, कोई वार्निंग आई ऊपर। वार्निंग क्या आई? फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, राइट? ये बात आई समझ में कि एक वार्निंग आई हमारे पास इंक्लूड से। अब ऐसा करते हैं, कॉन्फिग 1 की जगह हम कुछ और करते हैं, सॉरी, इंक्लूड की जगह कुछ और करते हैं। वो क्या है? रिक्वायर config1.php, और फिर से चलाते हैं इस कोड को, देखते हैं वार्निंग आती है या कुछ और होता है। क्या हुआ डिफरेंस? वार्निंग तो है ही एक, साथ में एक फैटल एरर भी है। फैटल एरर का मतलब ये है कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। रिक्वायर का मतलब ये फाइल होनी चाहिए, ये फाइल है क्यों नहीं। ठीक है, तो रिक्वायर स्ट्रिक्ट है थोड़ा, यानी कि जब ऐसी कुछ फाइल्स की नीड हो, आपको लगे कि इनका होना जरूरी है, इनके बिना प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको आप रिक्वायर में रख देंगे। जो फाइल आपको लीनियंट रख दी, ठीक है, अगर हो तो चल जाएगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, आगे कोड प्रोसेस कर सकते हैं आप, वो इंक्लूड में रखेंगे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लिया करो। तो हम फिलहाल अभी इंक्लूड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और config.php को इंक्लूड कर देते हैं। फिर से एक बार कोड रन कर लेते हैं कि हमारा कोड सही है कि नहीं है। तो कोड हमारा बिल्कुल सही है, कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब जब आप इसमें डेटा यहां से फिल करेंगे, जैसे मैंने यूजर फिल किया, यूजर आईडी कोई फिल की, कोई कॉन्टेक्ट नंबर फिल किया, और सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार इंस्पेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं। नेटवर्क में जाएंगे, और ये डेटाबेस तो आपका खुला हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं चेक करने के लिए कितनी एंट्रीज हैं। देयर इज 1 एंट्री। तो अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या मेरा डेटाबेस में डेटा चला जाएगा? चला जाएगा डेटाबेस में डेटा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जोर से बोलो।
इंसर्ट नहीं करवाया, ठीक है। क्लिक करके देखते हैं, यहां से डेटा गया। अभी अगर आप नेटवर्क में देखें तो यहाँ पे फाइल दिखनी चाहिए थी, मुझे दिख नहीं रही। अच्छा ठीक है, एक प्रॉब्लम हुई कोड में छोटी सी। मैंने एक्शन फॉर्म डॉट HTML लिखा हुआ, मुझे ऐड डॉट PHP लिखना है पहले तो। ठीक है, एक्शन वही रहेगा, एक्शन अभी वही रहेगा जो इस पेज का नाम है। फिर से ट्राई करते हैं, ऐड डॉट PHP, नेम @gmail.com, कॉन्टेक्ट नंबर, सबमिट डेटा, ऐड डॉट PHP, और ये डेटा जा रहा है यहां से। पर डेटाबेस में देखें अगर तो कोई एंट्री नहीं हुई है, और डेटाबेस में एंट्री ना होने का कारण है कि हमने यहां से कुछ इंसर्ट तो किया ही नहीं अभी तक। ठीक है, यहां से हमने एंटर किया ही नहीं कुछ भी। तो अब मुझे बताओ क्या करूं मैं यहाँ पे। पहले छोटा सा काम मैं खुद कर लेता हूं। तो PHP का कोड लिखना चाहता हूं मैं यहाँ अंदर, तो क्या लिखूं, पहली लाइन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, बात मत करो, इधर ध्यान दो। ठीक है, मैंने PHP का टैग लिख दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या लिखूं, सबसे पहला क्या काम होना चाहिए मेरा। एक फ्लो से सोचना है आपको, ठीक है, कि जैसे हमने फॉर्म में डेटा एंटर किया उसके बाद क्या होना चाहिए सबमिट करने के बाद। बोलो, जोर से बोलो। SQL क्वेरी तो बाद में लिखेंगे, उससे पहले भी कुछ और होगा। कनेक्ट तो हो गया, देखो config.php लेके आए हम, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। डेटा भेजने के लिए फाइल टाइप क्या बोल रहे हो, पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। वो तो config.php से बन गई ना। अभी डेटा भी तो पिक करना है फॉर्म से। फॉर्म से डेटा हमने पिक कहाँ किया अभी तक, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कैसे करना है। जब हमने 2 नंबर का सम किया मान लीजिए, तो हम डेटा उठाते थे उससे पोस्ट मेथड या गेट मेथड के थ्रू। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब तक कोई एंटर ना करे सबमिट पे, तब तक डेटा, ऐसा ना हो कि डेटा हमें कोई मिल जाए, नहीं तो क्या होगा, रिफ्रेश करते रहेंगे, बार बार वही डेटा भेजता रहेगा वो। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, इच सेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ध्यान हो पिछली क्लास का, तो सबसे पहले इच सेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इच सेट फंक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, तो पोस्ट पे चेक कर लेते हैं कि सबमिट हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वहां से डेटा उठाओ, नहीं तो आप एरर भी दे सकते हो, या आप वार्निंग दे सकते हो कि डेटा तो आपने पिक नहीं किया या सबमिट नहीं किया मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद हमें डिटेल्स पिक करनी है वहां से। वो क्या क्या होंगी, सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूजर नेम। यूजर नेम कैसे मिलेगा हमको, यूजर नेम कैसे पिक करेंगे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे अब आगे, $_ पोस्ट, और इसके अंदर यूजर नेम। ये जो यूजर नेम इसके अंदर लिखा है, ये कौन सा यूजर नेम है, जो नीचे फॉर्म में है नेम, वो है। क्योंकि देखो बहुत सारे नेम यहाँ पे हम हो सकता है सेम चीजें यूज कर ले, यूजर नेम वहां भी लिखा है वहां भी लिखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कौन से यूजर नेम की बात हो रही है। जब हम डेटा पिक कर रहे हैं फॉर्म से, वो फॉर्म वाला नेम वाला है, नेम एट्रीब्यूट है वो। ठीक है, अगर आईडी लिखें, नहीं आईडी तो गलत होगा ना, आईडी तो हम भेज भी नहीं रहे।
टाइप से टेक्स्ट और आप क्या बना रहे हो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमने डेटाबेस बनाया है, देखो यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास 5 कॉलम है। क्या है वो? एक आईडी है, एक यूजर नेम है, एक सेकेंड रुको, मतलब नेम और आईडी सेम, नेम और आईडी सेम है। हम तो यूजर नेम एंटर करवा रहे, फिर से फ्रेम करो क्वेश्चन अपना। नहीं, हमारा नेम तो हम एंटर नहीं करवा रहे यूजर से ना, हम यूजर नेम एंटर करवा रहे हैं सिर्फ। पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो वाली आईडी कह रहे हो आप? नहीं, आईडी और नेम दोनों अलग चीजें हैं। जो अभी जो एरे बना एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव एरे में जाती हैं चीजें, ये पता है आपको? एसोसिएटिव एरे में नेम ही जाता है, आईडी नहीं जाती। तो सर हम जब क्रिएट करते हैं आईडी तो कैसे क्रिएट करते हैं? आईडी यूज क्यों करेंगे? अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो करेंगे यूज, ठीक है। जैसे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तब यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, जैसे ये नेम यूजर नेम लिखा हुआ है ना, इसकी जगह अगर मैं आईडी इक्वल यूजर नेम कर दूं और तब वैल्यू पिक करने की कोशिश करूं ऊपर से, तो नहीं आएगी वैल्यू, क्योंकि नेम नहीं लिखा आपने। वो नेम एट्रीब्यूट में ही जाता है सारा। तो नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल ही ये होता है कि आप उससे एक एसोसिएटिव एरे बना सकें। तो हमने यहाँ से यूजर नेम पिक कर लिया, समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना बाद में, ठीक है। ईमेल इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल जो नीचे नेम ईमेल से आया। इसके बाद क्या रह गया? कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट बनाओ, $_ पोस्ट कॉन्टेक्ट। इसके बाद सिटी पोस्ट सिटी, ये 4 चीजें हो गई। अगर यूजर ने बटन पे क्लिक किया है तो ये चारों चीजें इन वेरिएबल में लेके आ जाओ। जो लेफ्ट साइड में डॉलर और समथिंग यूजर नेम ईमेल कॉन्टेक्ट सिटी लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यूजर नेम ईमेल कॉन्टेक्ट सिटी लिखना है। जो राइट साइड वाला यूजर नेम ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट सिटी है वो डिफरेंट है लेफ्ट वाले से, यानी कि आप अगर लेफ्ट में सिर्फ यूजर लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जब PHP में आप भेजेंगे आगे तो अब ये वेरिएबल भेजेंगे, फॉर्म वाला डेटा नहीं भेजेंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्म का डायरेक्टली भेजना है तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा, $_ पोस्ट, फिर उसके अंदर जो भी नेम था। लेकिन हम इन वेरिएबल को सेम बनाने के लिए ज्यादा याद ना करना पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इतना काम हो गया, तो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। चाहे तो आप यहाँ PHP में भी ये चेक लगा सकते हैं कि वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो अलाउ नहीं करेंगे फिर, ठीक है। अभी हम वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे करना है आपको वैलिडेशन। क्यों करना है वैलिडेशन? एक बार मैंने पहले डिस्कस भी किया था। यहाँ पे वैलिडेशन करने की क्या जरूरत है? वैलिडेशन करने की जरूरत है यहाँ पे पहले कि नहीं है? डिस्कस किया था हमने, राइट, कि क्लाइंट साइड पे हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है। क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट किसी और तरीके से भी आ सकती है, API के थ्रू आ सकती है। इन दैट केस आपको चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ बना के रखने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको एक क्वेरी बनानी है। उस SQL क्वेरी को आप चाहे SQL नाम दे सकते हैं या कुछ और नाम दे सकते हैं, और उसके अंदर आपको क्या करना है, ये क्वेरी जो हमने नीचे सेव कर रखी है तब से, ये जो क्वेरी हमारा तब से इंतजार कर रही है कि मेरा यूज होगा, उसका अब नंबर आ चुका है। इसको उठा लेते हैं यहाँ से, और ये सारा यहाँ से गायब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो SQL क्वेरी के अंदर डाल देते हैं वो सारा का सारा जो भी हमने वहां से पिक किया था। अब अगर मैं इंसर्ट करना चाहूं, अभी ये समझ लीजिए कि इंसर्ट इनटू यूजर्स मैंने लिख लिया, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट सिटी,
और उसके बाद कुछ वैल्यू पास कर रहा हूं। ये समझ लीजिए एसक्यूएल क्वेरी बन गई अभी फिलहाल के लिए, ऐसा मान के चलो ये क्वेरी बन चुकी है। मुझे ये क्वेरी इंसर्ट करवा, एक क्वेरी मुझे रन करवानी है। ये क्वेरी कैसे रन कराऊंगा? एक फंक्शन है MySQLi क्वेरी। MySQLi क्वेरी एक फंक्शन है, इसमें 2 आर्गुमेंट पास होते हैं। 2 आर्गुमेंट पास होते हैं इसमें। वो 2 आर्गुमेंट कौन से हैं? पहला आर्गुमेंट वो है जो कॉन्फ़िग में आपने बनाया था, डेटाबेस के जो हैंडल था आपके पास कौन नाम का, तो एक तो ये पास होगा पहला। दूसरा आर्गुमेंट पास होगा कि कौन सी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इतने करने से आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। तो ऐसा करते हैं, मैं नेम चेंज करता हूं थोड़ा बहुत। देख रहे हो आप क्या हो रहा है? ये थोड़ा फोन नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और सिटी कोई और रख लेते हैं। और एल्स में क्या रखेंगे? एल्स में आप एक मैसेज पास कर सकते हो। एक मैसेज पास कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे ही पेज रिफ्रेश करता है उसको बोलेंगे कि सबमिट का बटन तो क्लिक कर लो अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो। ऐसे कैसे कर रहे हो आप? तो ये बताओ, इतने से जो अभी हमने लिखा है इससे डेटा इंसर्ट हो जाएगा? ट्राई करें एक बार। ठीक है, तो मैं HTML फॉर्म पे जाता हूं, एक बार रिफ्रेश कर। प्लीज क्लिक सबमिट बटन टू सबमिट द डेटा। जैसे आपने रिफ्रेश किया, क्या बोल रहा है कि कनेक्शन तो सक्सेसफुल है लेकिन पहले सबमिट का बटन तो क्लिक करो। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाली थी, आपने ध्यान भी दिया होगा। तो इस फॉर्म में कुछ वैल्यूज फिल करते हैं। किसी एक बच्चे का नाम, तुम्हारा नाम क्या है? अदन, ADAN। ठीक है, यूजर नेम ADAN हो गया, adan@gmail.com। ये मैं फॉर्म में फिल कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट ऐसे कुछ भी उठा लेते हैं, और सिटी देहरादून की जगह दिल्ली कर देते हैं, और डेटा सबमिट करते हैं। तो डेटाबेस में होना चाहिए अब रिकॉर्ड। क्लिक किया टू सबमिट द डेटा। यहां देखो, यहां से फॉर्म से गया भी है डेटा, दिख रहा है सबको डेटा गया हुआ फॉर्म से। चलो ठीक है, डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये यूजर्स वाली टेबल ओपन करते हैं, पर यहाँ तो डेटा दिख ही नहीं रहा है। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो गई है। रिफ्रेश हो गया है। लो, कितनी बार रिफ्रेश करूं? लो, हो गया रिफ्रेश। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। इंसर्ट इनटू यूजर्स, सही है ये, यही था टेबल का नाम। सब चीजें चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसा ना कोई गलती कर दी हो हमने। तो सबसे पहले तो यूजर्स, हमने टेबल का नाम चेक किया, ये बिल्कुल सही आ रहा है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यही था। कनेक्शन क्लोज नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा इतने से चल जाएगा वैसे। ठीक है, इसके बाद आईडी, यूजर नेम, कॉन्टेक्ट, सिटी। तो एक काम करते हैं, चलो ये आईडी को भी हटा देते हैं, आईडी की जरूरत नहीं है। यहाँ से नल वैल्यू को भी हटा देते हैं। ठीक है, क्या क्लोज होगा? कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा।
कमांड तो एक ही है हमारे पास भी ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुए हमारे, ठीक है। ये सेमीकोलन हटा देते हैं पहले यहाँ से। यूजर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, उसके बाद वैल्यूज, और फिर हमने 4 वैल्यू पास कर दी। तो मोस्ट प्रॉब्ली सेमीकोलन की प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं। फिर माई एसक्यूएलआई क्वेरी। माई एसक्यूएलआई क्वेरी फंक्शन क्या करेगा, आपके 2 आर्गुमेंट पास कर रहा है और उसके बेसिस पे डेटा इंसर्ट करने की बात कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से वापस जाते हैं अपने फॉर्म के अंदर, क्लिक करते हैं अदन, ADAN, कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी देहरादून सबमिट कर देते हैं। तो फिर से यहाँ से डेटा गया है, इस पे चेक कर सकते हैं आप। अब डेटाबेस को फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसका मतलब। अब क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, सर सबमिट को नेम नहीं दे रखा शायद से। सबमिट को नेम नहीं दे रखा है, इनपुट टाइप सबमिट, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यही एक गलती थी। नेम सबमिट, ये तो जरूरी चीज है। नेम किसी का भी रहना नहीं चाहिए, नेम तो होना ही चाहिए है। पहले तो डायरेक्ट डेटाबेस में किया था ना, सबमिट यूजर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, सबके नेम सेम है, औरों के जो ऊपर है वही नीचे होने चाहिए। चलो अब ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये गलती पकड़ ली। फिर से ट्राई करते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो नाम बदलना पड़ेगा, किसी और बच्चे का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सिटी इनकी इस बार जयपुर कर देते हैं। सबमिट किया, ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, डेटा तो गया है कुछ ना कुछ। अब कोई गलती ना हो बस, ये बार बार एंटर करना पड़ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, तुम्हारा नाम तो आया नहीं, लेकिन यार अदन का नाम तो नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। हम वो चाहते हैं, तो कुछ हम जो फॉर्म से भेजना चाहते हैं ना, वो वाला डेटा एंटर करना चाहता था मैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर आपने पास ही नहीं कराया सर, वो आप पास नहीं करवाया, ये प्रॉब्लम है। तो पास कहाँ पे कराना है, जहाँ पे वैल्यूज लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे यूजर नेम, देखते रहो, सही सही है, यूजर नेम। अभी सिंगल कोट्स में आपको वो सारे वेरिएबल्स लिखने हैं जो ऊपर से लेके आए आप। ईमेल सेकंड वन, थर्ड क्या है, कॉन्टैक्ट, और फोर्थ है सिटी। तो इसका मतलब अगर आप मैन्युअली कुछ वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं यहां से भी। अब आप एक बात को समझे पहले, कि जावा स्क्रिप्ट में जो हम काम कर रहे थे, अगर मैं डायरेक्टली यहां से वैल्यू एंटर कर रहा हूं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। मैंने वहां वैलिडेशन अगर लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ा उसका, मैं तो डायरेक्टली यहां से क्वेरी भेज रहा हूं। तो फिर से वापस जाते हैं फॉर्म पे, नाम वही इस्तेमाल होगा। अदन को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरा नाम डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। इनका कोई फोन नंबर यूज कर देते हैं, सिटी कोई और जयपुर यूज कर लेते हैं। सबमिट किया डेटा, अब डायरेक्ट डेटाबेस में ही जाते हैं, चेक करते हैं। तो अब आ गया डेटाबेस में, ठीक है। सबको क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को?
देख लो डेटाबेस में एंटर हो चुका है ना, ये इसके लिए स्क्रिप्ट है पूरी। तो जैसे आपने इंसर्ट किया वैसे बाकी चीजें भी कर सकते हैं। सर चल जाना। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? स्कूटी का चाबी कहाँ है? स्कूटी का चाबी कहाँ है? इसको बच्चों कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक जो भी डिस्कस हुआ है? अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक डेटाबेस वेब नाम से क्रिएट करना है आपको, और जो मैं वैल्यूज बता रहा हूं इनको फॉर्म में एंटर करवाना है। तो एक तो यूजर की आईडी है जो कि प्राइमरी की है, इसको आप ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यूजर नेम, इस टेबल का नाम यूजर्स होगा। यूजर नेम आपने किया, ईमेल, और मान लीजिए ब्रांच यूज कर लेते हैं हम, या जेंडर और सिटी। ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड हैं, आप किसी को खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे रेडियो बटन यूज करना है आपको जेंडर में, और सिटी में आपको ड्रॉप डाउन यूज करना है। एटलीस्ट 10 सिटीज देनी है आपको लिस्ट में जिससे सेलेक्ट किया जा सके। क्वेश्चन देखते रहो, नोट भी करते रहो, क्योंकि अभी स्क्रॉल कर लूंगा ऊपर तब चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी टेबल बनानी है आपको स्टूडेंट डिटेल्स नाम की। ठीक है, एक तो इसमें भी आईडी रहेगी जो कि इस पर्टिकुलर टेबल की प्राइमरी की होगी,
ऊपर वाली आईडी और ये वाली आईडी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें यूजर नेम रहेगा, ऊपर वाला यूजर नेम वही है जो ये है एक्चुअली। तो एक तरीके से समझ लीजिए फॉरेन की है, फॉरेन की पता है, डेटाबेस तो आपने पढ़ा है पहले से, ठीक है। इसके साथ में आपको ब्रांच देनी है जो कि स्ट्रिंग या टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट फील्ड होगा। ठीक है, और साथ में आपको ईयर एंटर करवाना है जो कि इंटीजर फील्ड होगा। ये दो अलग अलग टेबल है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन समझ रहे हैं सारे लोग? ये दो अलग अलग टेबल है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या है। आपको एक फॉर्म का यूज करना है, फॉर्म एक ही रहेगा, उसमें डिटेल फिल करेंगे आप, और उससे डिटेल निकाल के दो अलग अलग टेबल में डालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब डिटेल एक ही है बट उनको अलग अलग जगह डालना है। सेकंड क्वेश्चन, डेटा रीड करना है और कुछ इस फॉर्मेट में दिखाना है। फॉर्मेट क्या है? यूजर नेम, ईमेल, सिटी, ब्रांच, ईयर। इस फॉर्मेट में आपको ये डेटा दिखाना है। टेबल अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, अभी के लिए ट्राई कर लेना, नहीं तो बिना टेबल के भी दिखा सकते हो। थोड़ा टेबल टाइप का फॉर्मेट बन जाए बस, ऐसा कुछ। एग्जैक्ट टेबल बनानी है नहीं बनानी वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन डेटा ऐसा कुछ आना चाहिए। समझ गए क्या क्या करना है? हाँ अभी करना है, नहीं तो कब करना है? करो स्टार्ट। अब किसी को कुछ क्वेश्चन में पूछना है तो पूछ लीजिए, एक बार फिर से देख लो। सर जो स्टूडेंट डिटेल्स में डेटाबेस ब्रांच और वेब नाम से क्रिएट करना है अपने सिस्टम पे, और ये डेटा सारा लेना है एक फॉर्म से। आईडी आप चाहे तो ना लें, ये आईडी लेने की जरूरत नहीं यूजर से, ठीक है। ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है कि ये कैसे लेना है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। यूजर नेम लेना है, ईमेल, जेंडर, सिटी। यूजर नेम दो बार आ रहा है तो एक्चुअली दो टेबल ने इसलिए आ रहा है, एक ही बार एंटर करेंगे उससे काम चल जाएगा। और साथ में ब्रांच एंड ईयर। तो एक्चुअली जो आपको फॉर्म से डेटा लेना है वो चार चीजें ये हैं और दो चीजें ये हैं, छह चीजें हैं टोटल, बट उनको डिवाइड करना है दो टेबल्स में। तो पहला काम इंसर्ट करने का, इतना करो पहले तो। उसके बाद रीड एंड शो द रिकॉर्ड्स इन फॉलोइंग फॉर्म।
सो द रिकॉर्ड इन अबव फॉर्मेट। थर्ड क्वेश्चन भी इसी में, फॉर अ गिवन यूजर नेम, फिर उसी का शो होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो 2 मिनट का समय है आपके पास, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। फिर मैं क्लास के एंड में चेक करता हूं कि किसने कितना किया एंड तक। ठीक है सर, 2 अलग-अलग टेबल्स बनानी समझ है। में आनी चाहिए। क्लास अटेंड करने का फायदा ये होता है कि अब जब मैं कोड पुश करूंगा ना, उसमें ये दिखेगा नहीं सब कुछ कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्योंकि कोड तो छोटा सा होगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके पीछे, जैसे मैंने इंक्लूड लिखा, रिक्वायर्ड लिखा, वो सब हमने यहाँ पे समझे। लेकिन जब कोड पुश होगा तो क्या होगा, सिर्फ इंक्लूड लिखा होगा, तो जो उस कोड को देखेगा वो कहेगा अच्छा इतना ही पढ़ाया, तो उसके ये एक्सपीरियंस मिस हो जाएगा। इसलिए क्लास अटेंड करने का फायदा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, कुछ सोच रहे हैं कि हम वीडियो देखेंगे बाद में हमारा काम चल जाएगा, बट आप देखना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि एडिट तो कर नहीं रहा हूं मैं वीडियो इस बार। 2-3 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको पूरी, बीच बीच में देखो वो तो क्लियर नहीं होगी चीजें। अच्छा ठीक है, लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं? ठीक है, एक सेकेंड, चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं पहले।
ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से ये हो चुका है आज का। नेक्स्ट क्लास में और चीजें पढ़ेंगे। तो अभी सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे नहीं है वो देख लीजिएगा। सर थैंक यू एक सो चीज पूछनी थी।